Welcome my chemistry class. Last lecture we have learnt about displacement reaction. Now I am taking exothermic and endothermic reaction. What are exothermic reaction and what are endothermic reaction? To understand this reaction I am taking the examples of exothermic and endothermic. What is exothermic reaction? The reaction in which heat is evolved or released and product is formed, it is called exothermic reaction. You can see here reactants convert into product and in this reaction heat is evolved. So it is called exothermic reaction. Exo means बाहर की तरफ. जब रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं आपस में और प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज होते हैं तब हीट जो इवॉल्व होती है उस प्रोसेस में दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. And the example of exothermic reaction is respiration. You will learn the respiration in your bio class. Bio में आप लोगों को पता है respiration. What is respiration? We take oxygen and we take out carbon dioxide and in this process heat is released. So it is also called exothermic reaction. Another example of exothermic reaction is rusting of iron. Rusting of iron, it is also a type of exothermic reaction because in this process it is evolved. And third is burning of coal. When coal is burned, it releases a lot amount of heat. Now I am taking endothermic reaction. What is endothermic reaction? The reaction in which heat is absorbed, it is called endothermic reaction. For example, I taken here photosynthesis. You will learn this process in your bio class. What is photosynthesis? In photosynthesis, carbon dioxide and water combine together in the presence of sunlight and they give carbohydrate. It is called photosynthesis. आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में सबसे पहले प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद ही तो इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट यानी कि हीट उसने एब्जॉर्ब की देन दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट. सो इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक मीन्स एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट. इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस एंड अदर एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस टेक हीट फ्रॉम एनी सोर्सेस. आइस को जैसे ही हीट मिलती किसी भी सोर्स से वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है. सो इट इज ऑल्सो कैटेगराइज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो in categorized in the form of endothermic reaction because in decomposition reaction heat is absorbed. मैंने आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा दी है उसमें 3 पार्ट्स थे बाय हीटिंग बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन. इस तरह से मैंने डीकम्पोजिशन आपको बताया. उसमें किसी न किसी सोर्स से हीट को सबसे पहले लिया जाता है और उसके बाद ही वो डीकम्पोज होता है. कोई भी कंपाउंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन देता है. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कैटेगराइज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब इन दोनों रिएक्शन में आप देख सकते हैं हीट यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट साइड में लिखा है मतलब ये एक्सोथर्मिक. इस वाली रिएक्शन में एंडोथर्मिक में मैंने हीट जो लिखा है वो रिएक्टेंट साइड में लिखा है. इसका मतलब रिएक्टेंट यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को और फिर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है इसीलिए ये एंडोथर्मिक. ऑन द अदर एंड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट के साथ में हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है. सो इट इज एक्सोथर्मिक. Next, I am taking oxidation and reduction reaction. What is oxidation reaction? An oxidation reaction, the addition of oxygen and removal of hydrogen takes place. It is called oxidation reaction. For example, I am taking carbon and oxygen. You can see here, oxygen is added with carbon and form CO2. So it is called oxidation reaction. Next, reduction reaction. In this reaction, addition of hydrogen and removal of oxygen takes place. So it is called reduction reaction. You can see here, I am taking an example. In this reaction, hydrogen is added to sulfur and form H2S
hydrogen sulfide gas. So it is a reduction reaction. And oxidation and reduction process simultaneously takes place. So these are called redox reaction. जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है तब हम उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल. आई एम टेकिंग CuO plus H2. इट गिव्स Cu plus H2O. आप यहाँ पे देख सकते हैं CuO है. ओके, यहाँ पे इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया, रिमूव हो गया और यहाँ पे बना है Cu. तो इस तरह से यहाँ पे जब रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन का तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो इस तरह से रिमूव हुआ ऑक्सीजन का, इसीलिए इसको कहा गया है रिडक्शन रिएक्शन. अब यहाँ पे आप देख सकते हो H2 में H2 ऑक्सीडाइज्ड इनटू H2O. आपने देखा H2 क्या बन गया, H2 किस में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर H2O में. H2O में कन्वर्ट हुआ. कैसे कन्वर्ट हुआ, इसमें एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, इस तरह से ये H2O में कन्वर्ट हुआ है. सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब एक ही एग्जाम्पल में जब दोनों रिएक्शन साथ साथ में होती है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. इन योर बुक देयर आर 2 प्रोसेस which are related to oxidation. आपकी बुक में 2 ऐसी प्रोसेस दे रखी है जो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है. फर्स्ट, करोजन. व्हाट इज करोजन? अब करोजन मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है, सपोज आयरन है, आयरन को अगर हम बाहर रख देंगे ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में, उसके साथ मॉइस्चर में भी अगर रख दिया जाता है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है. इट इज कॉल्ड करोजन. यानी कि आपने देखा होगा ब्राउन कलर के जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं और वो आयरन खराब हो जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है करोजन. इस करोजन की यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है. आयरन एक्सपोज्ड इन एयर, एयर में उसको रखा जाता है. साथ में एयर के साथ में आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मॉइस्चर भी होता है. तो यहाँ पे N लिखा हुआ है. N का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को आप काउंट नहीं कर सकते कितने वाटर मॉलिक्यूल्स उस पर डिपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे NH2O लिखा हुआ है. तो इस तरह से जब आयरन के ऊपर ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स डिपोजिट हो जाते हैं तो ये एक तरह का हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. इट इज कॉल्ड रस्ट. इसको कहा जाता है कि आयरन को रस्ट लग गया है और आयरन को हमें बचा के रखना है रस्ट से. तो आपने देखा होगा कि रस्ट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशन है जो रस्ट से बचाने के लिए किए जाते हैं. दे प्रिवेंशंस आर फर्स्ट पेंट. हम लोग आयरन के ऊपर पेंटिंग करते, उसके ऊपर कलर करते, ऑयल पेंट किया जाता है जिससे कि आयरन क्या हो, रस्टिंग से बचा रहे. सेकंड प्रोसेस में ऑयल या ग्रीस लगा दिया जाता है. आयरन मटेरियल्स पे क्या लगा देते, ऑयल या ग्रीस की कोटिंग कर देते जिससे कि उस पर रस्ट नहीं लगे. नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन मीन्स आयरन के ऊपर अगर जिंक का कोटिंग कर दिया जाए तो उसके ऊपर रस्ट नहीं लगती है, उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन. इस तरह से इस कोरोजन प्रोसेस में, व्हाट इज कोरोजन प्रोसेस, द इक्वेशन ऑफ कोरोजन एंड प्रिवेंशन फॉर कोरोजन, यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है. इस तरह से आपका ये कोरोजन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट आई विल टेक रेंसिडिटी. रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन से ही जुड़ा हुआ है लेकिन इट डिफरेंट फ्रॉम कोरोजन. ये कोरोजन से थोड़ा डिफरेंट है. इसमें मैंने बताया किसी भी मेटल के ऊपर, कोरोजन में हमने बताया मेटल के ऊपर जब ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स डिपोजिट हो जाते हैं और वो उसको क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन. ऑन द अदर हैंड रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन किसका हो रहा है, फैट्स और ऑयल्स का. फैट्स और ऑयल्स बहुत दिनों तक अगर रखे हुए होंगे, for a long time they kept and the oxidation of fats and oil started, this process is called our rancidity. आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक अगर बटर, घी या फिर चिप्स, पोटैटो चिप्स जो कि ऑयल में ही उसको फ्राई किया जाता है, तो ये अगर बहुत दिनों तक रखे रहे तो इनमें एक अलग सी स्मेल और उसका आने लगती है और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, वो बिटर हो जाता है, खराब हो जाता है टेस्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी. यानी ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन यहाँ पे फैट्स और ऑयल्स जो रहते हैं वो
उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया है रेंसिडिटी, और दिस कंटेंट्स इज कॉल्ड रेंसिड कंटेंट्स। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचाव के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या क्या रखना चाहिए, सावधानी क्या रखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट, वी शुड केप्ट अवर फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर। हमें जितने भी हमारे फूड आइटम्स हैं जो ऑयल और इससे बने हुए हैं, घी से बने हुए, उनको हमें एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, जिससे वो रेंसिडिटी से बचे रहें। नेक्स्ट, उन्हें हमें रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। वी शुड कीप देम इन रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हमें क्या करना चाहिए, उनमें एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे ऐसे होते हैं ऑयल और फैट से बने हुए प्रोडक्ट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, आपने देखा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट भी यूज में किए जाते हैं। जो पैकेट फूड मिलते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट को डाला जाता है और इस तरह से उनको प्रिजर्व करके फॉर ए लॉन्ग टाइम रखा जाता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अभी एनवायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन कैसे क्या क्रिएट किया जाता है इन रेंसिडिटी से बचाने के लिए। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि हम जब पोटैटो चिप्स लेते हैं, जैसे लेज है, कुरकुरे है, ये सब आपने देखा होगा कि इनके जो पैकेट्स रहते हैं, इनके पैकेट्स में आपने देखा होगा कि कंटेंट्स, जैसे पोटैटो चिप्स तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम एयर फिल की जाती है। तो जो एयर फिल की जाती है वो नाइट्रोजन के एनवायरमेंट में की जाती है ना। उससे क्या होता है कि हमारे जो पोटैटो चिप्स है, जो मार्केट में मिलते हैं पोटैटो चिप्स और ये सब, तो ये फॉर ए लॉन्ग टाइम साल भर भी उनको रखना पड़ता है। कई बार 6 मंथ की उनकी डेट दी रहती है, एक्सपायरी डेट, कई बार साल भर की उसकी एक्सपायरी डेट दी होती है। तो इस तरह से ये सालों साल रखे जा सकते हैं और ये खराब नहीं होते अगर हम उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में उसमें भरते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि उन चिप्स में बहुत हॉलो रहता है, वो एक पैकेट पूरा फुला हुआ दिखता है, उसके अंदर चिप्स तो बहुत कम क्वांटिटी में निकलते, लेकिन उसका जो पैकेट है बहुत ज्यादा वो बड़ा आपको दिखता है। वो इसी वजह से दिखता है कि उसमें वो गैस फिलअप की जाती है। सो इट इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। सो आई टेक हियर कोरोजन एंड रेंसिडिटी एंड दे आर कनेक्टेड टू अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Our next reaction is neutralization reaction. What is neutralization reaction? Neutral means acid and base react together and they form water, and water is neutral, so it is called neutralization reaction. So the definition of neutralization reaction is when acid and base combine together and they form salt and water in this reaction, so it is called our neutralization reaction. Here I take hydrochloric acid and base sodium hydroxide, they combine together and they form a salt sodium chloride and they form water. In this reaction water is formed, so it is called neutralization reaction. अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कहाँ पे बेनिफिट है? पर्टिकुलरली इट इज यूजफुल इन अवर केमिकल लैब व्हेन एक्सीडेंटली केमिकल्स स्पिल इनसाइड द लैब। एक्सीडेंटली अगर कोई लैब में गिर जाता है एसिड या बेस, अगर एसिड गिर गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डाल दिया जाता है, तो दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे और उसका एसिड का जो इफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से लैब में इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यूज में लाया जाता है।